evening, and I'd like to first welcome all my friends from the media fraternity. Thank you all for joining us today. I'm pleased to announce that the 14th edition of the Zee Cine Awards will be held in Mumbai. Year on year, Zee Cine Awards is a property with growing global reach and audience share. Every year, the talent recognized by our viewers continues to inspire us with the depth and richness that the Hindi film industry represents. Zee Cine Awards is our biggest worldwide property as the votes it receives represent the unanimous voice of a global audience. It is a pleasure to be here once again with Shah Rukh, as he is an integral part of Zee Cine Awards right from the start. In 2013, our long-standing association with Shah Rukh set a new benchmark in the industry. Zee celebrated a milestone on the Indian television with Shah Rukh's blockbuster Chennai Express. The film's world television premiere had the highest viewership ever on Indian television. This time on Zee Cine Awards, audiences will see Shah Rukh in a very entertaining act. The success of Zee Cine Awards over the years makes it a crucial component of every advertiser's media mix, and this year they will further leverage it across Zee's various channels. Zee, with it being a network property, Zee News and DNA will be our news and print partner, and ETC will be our Bollywood partner. Our tie-up with the upcoming movie Total Siapa will also be an interesting initiative as we support extraordinary new films that need a platform like Zee Cine Awards to showcase their work. You will soon hear more announcements surrounding Zee Cine Awards, and we are looking forward to celebrating the achievements of the Hindi film industry in 2013 in a fitting, glamorous manner. Once again, I thank you all for being here, and over to Usha again. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, for the superstar who has been with Zee Cine Awards since its inception in 1998. His high-octane charisma wows audiences wherever he goes. 22 years of stardom lends an actor a quality hard to define. One cannot slot him just as a movie actor, as he dons several hats, including film producer, cricket franchise owner, and a creative and brilliant entrepreneur. It's all in a day's work for him. Put your hands together to welcome the true global ambassador of Indian culture, Mr. Shah Rukh Khan. Thank you very much, everyone. Good evening, and for a change, I was here on time. I was told a few of you were late, so I have to wait in the room. So I can't tell you how happy I feel about this. But welcome here, and thank you as always for being here in such large numbers and with such warmth and goodness. Thank you very much, Puneet, who's a very, very special friend, has been a friend even before my introduction to Zee Cine Awards, this year called the Lux Cozy Zee Cine Awards 2014. We've been friends, we sit down, chat, talk about life. Sometimes, if I'm allowed to say, sing songs together late into the night. Some really sad old songs, and dance together with his family and mine together. It's always been fun being with him. Whenever I've participated since 1998, as I've been reminded in Zee Cine Awards, it's never been work for me. I do it because I enjoy it. I do it because it's great fun. I have hosted a few of the segments. I have hosted full shows of Zee Cine Awards. And this year too, I wanted to be different. I wanted to do an exclusive act, which I'm not doing for anybody else, but for Zee Cine Awards, hopefully, once we've prepared it and done it and perform it on 8th of Feb live. And when it's beamed on 23rd Feb, am I correct? 23rd of February. तो देखना मत भूलेगा जी सिने अवार्ड, सिर्फ जी सिने अवार्ड्स, लक्स को जी सिने अवार्ड 2014 सिर्फ जी सिने पर. So, but thank you very much. It's I know we have the award season. I was just tweeting before I came here, just like the festive seasons in India, we have the award season. And so happy season greetings for awards to everyone. बहुत सारे होते हैं और सबके सब को बेस्ट विशेस और सबके सब बहुत अच्छे होते हैं. एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अच्छा लगता है या डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को जब उनके काम को सराहाया जाए. लेकिन जी सिने अवार्ड एक कहा नहीं जाता ऐसा, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा व्यूअर चॉइस अवार्ड है. आई थिंक इट्स मोर बेस्ड ऑन द पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू. Last year itself, I was made to understand backstage that 52 million people saw the Zee Cine Awards. Overall, Zee covers more than 700 million people viewership.
and 4.5 million people, I'm made to understand, voted for the award. So all the actors, actresses, directors, producers and filmmakers who are awarded the Zee Cine Awards, I think somehow reach the heart of the audience all across the world in different languages, across nations and across barriers. So I think that itself is an extremely commendable job done by this television channel to take our cinema across the world. I am privileged and humbled and extremely grateful for Puneet and his team to always choose me as an integral part of Zee Cine Awards. Thank you very much. I hope you enjoy this year's edition, and best wishes and are in order to everyone who's participating, and inshallah may the best films, the best actors, the best actresses, the best performers win, and we all for you. I'm an employee of Zee now. I even write for the DNA, but that's only for his wife. So I'm full-time working. As a matter of fact, sometimes when I get time, I go and shoot films also nowadays. So thank you, Zee, for giving me this platform, making me feel so important to have the launching press conference. There are going to be very many more accomplished actors, performers, actresses who are going to be performing for Zee Cine Awards on the 8th of February. But thank you very much for choosing me to be the one to launch the press conference. So thank you, everyone, for being here. Have a good evening. Thank you, Shahrukh. We are happy to be associated with Lux Cozy. I'd now like to request Mr. Ashok Todi, Chairman, Lux Industries Limited, to come up and speak about his association as title sponsor of the awards. Sir, please, a few words about your association as title sponsor. Now the portion that all of you are waiting for. We throw open the floor for Q&As. Please keep your questions to the agenda at our press meet today. Request you to please raise your hands, say your name and publication, and then throw your question. There are mics on 4 sides. If you'd raise your hand, we'll take the first question. Hi. Hi, Can Shahrukh. we have the house lights on, To your left, please? Shahrukh. Hi. Can To we your have- left. Hi. Yeah. Okay. Yeah. How are you? I'm good. How are you? So, Mr. Shahrukh, you have been a darling to awards since long time. And this time your movie, and this year 2013 was a big, proved to be a successful year for Bollywood at box office. Your movie Chennai Express was a blockbuster. Then came Krish, which was also a big hit. And finally came Dhoom 3, which surpassed all records. So in this scenario, how confident are you about winning the awards? I don't even know if I'm nominated actually yet. I'm really sorry. I don't normally even see the nominations. I have had so many awards, mashallah. Allah's been very kind. I think the award functions have been very kind. I think the work and the directors and producers have been so kind that I am somehow have been part of award functions in some capacity or the other, even on the receiving end in terms of the good awards that have been bestowed upon me. So I have lost that whole system of sitting and watching if I'm nominated, not. I just go have fun. Sometimes I perform if I'm called upon to do so, like the relationship I have with Zee. And sometimes I just go and attend and hope that I've done good enough work. I always say an award is actually a recognition, a whole year's work. And whenever I'm given so, I feel very thrilled and thankful. And then I promise myself I'll work harder. The year I don't get it, I'm still thankful, and I promise myself I'll work even harder to try and get it next year. So I don't compare, I don't think. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके लिए अच्छा या बुरा सोचता हूँगा, उनको ये नहीं मालूम मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, अपने काम के बारे में सोचता हूँ, खुश रहता हूँ और मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ. Beyond that, I don't really sit down and work out. But this one is a special award. तो जब भी मुझे ये वाला बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिलता, थोड़ा बुरा लगता है. तो अगर इस साल नहीं मिलेगा तो अगले साल और कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा. जो बाकी हैं फिल्म के अवार्ड, प्रोड्यूसिंग के अवार्ड, राइटिंग के अवार्ड, वो मेरी डोमेन के नहीं है यार. मुझे बेस्ट एक्टर अच्छा लगता है जो मुझे आता है. And that's my main core job. So inshallah I will try harder if I don't get it. If I get it, I'll still work harder so I get it next year again. Next question. Mr. Goenka, this is Lipika here from Deccan Chronicle. We would like to know who is hosting the show. As you saw in the AV, it's Mr. Abhishek Bachchan who will be hosting the show. He'll be hosting it single-handedly. Will he have a female along or a... There will be several other hosts along with him, Okay. the names of which you will come to know over the course of time. Okay. And Shahrukh, you said that you are on the
I mean, you've been आप कहाँ हैं? मुझे appointed. दिख नहीं रही हैं आप. आप मुझे thank you. जानते हो लिपिका जी? नहीं, वो तो light कमा लिया आपने. ओके. लेकिन आप खड़ी हुई, आपके चेहरे की रोशनी इतनी है कि यहाँ तक दिख रही है. Thank you. मैं ये I was just asking you that you said you are you on the I mean आप appoint हुए हैं उसके लिए. So I wouldn't be asking how much you will be paid, but will you be taking away all the royalty? If you asked me, Yeah. Will if you asked me how much I'm being paid, I'll ask you your age. Women don't tell their सीधा सौदा है. age. आप मुझसे मेरी किसी मर्द से उसकी सैलरी पूछो तो वो आपकी उम्र पूछेगी. Then will you be taking away the royalty, some of the royalty? मैं खुद रॉयल्टी हूँ, किसी से रॉयल्टी क्या लूंगा जाने मन. Well said. Next question. हाय शाहरुख यहाँ पर आपके यहाँ मत मुझे मेरे राइट लेफ्ट बोल दो यहाँ, प्लीज. थैंक यू. हाय एक वक्त ऐसा था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिर्फ और सिर्फ बादशाह खान के नाम पर होता था. सिर्फ अगर ख्याल आता था तो ये होता था कि सिर्फ शाहरुख खान पर इसका नाम होगा. लेकिन अब ऐसा लगता है कुछ सालों से कि ये अवार्ड कहीं ना कहीं बादशाह खान से दूर हो गया है. क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, आप बताइए. आप बताइए, कहीं ना कुछ ये तो व्यूअर्स के वोट होते हैं, आप अगर है. देखते होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है. इतने सारे अवार्ड फंक्शन हो गए हैं. एंड आई थिंक मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलता है, चाहे मुझे मिले या ना मिले. एंड आई बीन अ वेरी आई एम अ स्पोर्ट्समैन एट हार्ट. आई एम वेरी फेयर प्लेइंग. देयर हैव बीन ईयर्स व्हेन आई हैव गॉट द अवार्ड और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे बेहतर किसी का काम था, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि अवार्ड ज़्यादा पॉपुलर था. पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिला है. तो ये भी अच्छा लगता है कि अब क्रिटिक्स अवार्ड भी हैं, व्यूअर्स चॉइस भी हैं और पॉपुलर अवार्ड भी हैं. सो कोशिश जारी रहती है और ऐसी फिल्में. और मैं थोड़ा शायद काम भी कम करने लगा हूँ. मैं पुनीत को भी बोल रहा था पीछे, यार इस साल मुझे लगता है मैं 4-5 फिल्में कर ही डालूँ. मैं अभी एक फिल्म करता हूँ. थोड़ा मैं आराम पसंद हो गया हूँ. सो आई हैव बीन लेड बैक एंड इट्स नाइस इफ अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड आई थिंक एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर द सेम. To me, the quality of work they do is equally important. And when they get the awards, it's nice and I appreciate it. And sometimes I get extremely inspired and want to do even better when I see them, not my own work. So inshallah, as the years go by, ऐसा वक्त फिर से आएगा कि आपको लगेगा कि ये अवार्ड सारे शाहरुख खान के हैं. हम तो नहीं चाहते आएगा हैं कि तो award मेहनत आपको करता मिले. रहूंगा मैं. हम तो चाहते हैं आपको अवार्ड मिलते रहे शाहरुख. आप जो है व्यूअर्स चॉइस है, टेलीफोन नंबर 59599562. शाहरुख आप वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए. क्या कर रही हैं आप? बातें कर रही हैं, बस वोट नहीं कर रही हैं आप. शाहरुख आपका सेल नंबर हो तो शायद डायरेक्ट वोटिंग हो जाएगी. किसी टोल फ्री नंबर. उससे डार्लिंग वोटिंग नहीं होगी, उससे डेटिंग होगी. यस, आई एम रेडी. अच्छा, अगर अवार्ड्स की बात हो तो शाहरुख के दिल में कितनी धक धक होने लगती है? परफॉर्मेंस की बात हो या फिर होस्टिंग की बात हो? ये बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस है, ज़्यादा नहीं कहूँगा. क्योंकि मुझको एक मैं एक वर्ल्ड टूर कर रहा था. वर्ल्ड टूर नहीं, छोटा सा मिनी वर्ल्ड टूर कर रहा था. और मुझे एक ऐसा दिमाग में आया एक हमारी को एक्टर्स के साथ परफॉर्म करने का. एंड होपफुली अभी हमने उसकी शुरुआत नहीं की है, उसका बस थॉट प्रोसेस बनाया है. जो हम आइटम करेंगे वो अच्छा इंटरेस्टिंग होगा. मुझको ऐसा लगता है सबको बहुत पसंद आएगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड लव टू इवन होस्ट सेक्शंस. पुनीत दोस्त हैं, मोर देन अ जॉब आई डू इट एज अच्छा लगता है मुझको. जैसा अभी टोडी साहब कह रहे थे कि जी के साथ उनका पुराना रिश्ता है, मेरे साथ रिश्ता है, मतलब अंडरवेयर भी है, बनियान भी है. दोनों ही साथ में है. तो मुझको भी ऐसी फीलिंग आती है कि ये बड़ा कंफर्ट का मामला है, अच्छा लगता है यहाँ पे. आई वुड लाइक टू कम इन होस्ट ऑल्सो, बट दिस टाइम आई रियली वांट टू कीप समथिंग स्पेशल फॉर द परफॉर्मेंस, वर्क हार्डर ऑन इट, बिकॉज होस्टिंग इज अ बिग जॉब. तो मैंने पुनीत को बोला, पूरी टीम को बोला कि मैं एक स्पेशल सा आइटम करना चाहता हूँ एंड इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा. बट आई फील वेरी नर्वस because I'm not so good at performing, but I'll try my best and make sure that it works out well. खान साहब आपके लेफ्ट में स्पीकर के पास. मेरे राइट. एक्सक्यूज मी. मेरे राइट, Yes, तुम्हारे sir, लेफ्ट. शाह भाई. कहाँ है? हाँ. Yeah, please ask your question. The one who's standing. 1 second, yeah, please, thank you. So you have 3 releases next year. Happy New Year, Fan and Raees. So आपको लगता है कि आपको कौन से फिल्म में अवार्ड मिलेगा बेस्ट एक्टर का? अभी तो यार शुरू भी नहीं की मैंने. अच्छा. अभी तो रिलीज कब होंगी ये मुझे खुद नहीं मालूम है. तुम्हें लग रहा है तीनों रिलीज होंगी, लेकिन मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं सचमुच कोर पे अभी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और चीज़ें भी करता हूँ, लेकिन आई रियली थिंक आई कैन ओनली ट्राई माई बेस्ट एंड डू व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर 20 years कि मैं कोशिश करके एक्टिंग करता. तो अलग किस्म की फिल्में, हैप्पी न्यू ईयर पॉपुलर सिनेमा है,
जश्न का सिनेमा है, सेलिब्रेशन का, तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी उस लेवल पे। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें, और हम सब जो हैं प्रोटैगनिस्ट हैं फिल्म में। मेरी फिल्म नहीं है, अभिषेक जी हैं, दीपिका हैं, बमन, विवान, सोनू, सब एक इम्पॉर्टेंट, जैकी सर, सबका एकदम इम्पॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। एंसेम्बल फिल्म है। बाकी जो है फैन और रईस स्पेशल सी फिल्म है एज एन एक्टर। सो मैं बहुत मेहनत करूंगा और फिर देखूंगा यार। जैसे मैंने बोला, नंबर टेलीफोन बता चुका हूँ, बार बार फोन करके अगर तुम वोट देते रहोगे तो कुछ हो जाएगा शायद। और सर सबने वन सेकेंड क्यों डांट रहे हो इसको सब? सबने आपकी सर बहुत मिमिक्री करी है, पर मुझे नहीं लगता आपको किसी ने माय नेम इज खान करके दिखाया है। और सॉरी माय नेम इज खान की मिमिक्री करके किसी ने दिखाया नहीं है, और वो मेरा इट्स द फेवरेट रोल विच यू प्लेड फॉर मी। सो इफ वी हैव द टाइम, कैन आई जस्ट से वन लाइन फॉर यू? हाँ बोल दो यार, मैं तो ओके। मेरा नाम रिजवान खान है। खान, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अलग लगूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूं। नो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। Thank you. और 8 फरवरी से पहले इस साल का लक्स कोसी जी सिने अवार्ड 2014 जाता है। वहां खड़े हुए, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम को तालियां। खान साहब Thank you, प्रेम। Next खान question. साहब आपके राइट में आलोक फ्रॉम OFM। मेरा सवाल है कि अवार्ड्स तो बहुत सारे हो रहे हैं, पहले भी हुआ करते थे। पहला अवार्ड शाहरुख खान को कौन सा मिला था, उसके बारे में अगर कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें, बताना चाहें। पहला अवार्ड। द फर्स्ट अवार्ड आई गॉट, मेरी बड़ी मुझे कोई भी अवार्ड मिले यार बहुत अच्छा लगता है सचमुच। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तबका, कोई प्लेटफॉर्म मेरे काम को सराहा रहा है। मुझे बहुत इज्जत है अवार्ड्स की, और मैं हमेशा कहता हूँ, मजाक से कभी कभी कहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि सारे के सारे मुझे मिल जाएं, लेकिन एक मुझे बहुत दिली खुशी मिलती है जब मुझे अवार्ड मिलते हैं। अपनी फिल्म की एक्टिंग के लिए मिले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो पहला अवार्ड था मुझको, जब तक मैं मुंबई आया था तो ऐसी सिचुएशन थी कि माँ बाप नहीं थे। सो आई ऑलवेज सेड दिस, दैट आई विल बिकम सच अ बिग स्टार दैट माई पेरेंट्स कैन सी माई फिल्म्स फ्रॉम हेवन। तो कोशिश जारी है, अगले 5-10 साल के अंदर शायद इतनी बड़ी फिल्म बना लूँ कि वो भी वहाँ से देख सकें। And I dedicated my first award to my mom and dad, so that was very special. And now I dedicate each of my award to my children. तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि क्रिटिक्स भी मिल जाए, पॉपुलर भी मिल जाए। एक बेटे को, एक बेटी को, अब तीसरा वाला हो गया है तो अभी मैं एक और कैटेगरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा वो कुछ है कि सुपरस्टार ऑफ द ईयर एंड ऑल, तो बट आई लाइक टू डेडिकेट इट टू माई चिल्ड्रन सो दैट आई कैन not for any other reason to show off or tell them how good I am, but just to be able to encourage them कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, अगर सब कुछ मिल भी जाए जैसे अल्लाह ने मुझे दिया है, कि लगता रहे कि कुछ मेहनत करके हासिल करना जरूरी है। सो आई थिंक ऑफ अवार्ड्स as something that gives me immense amount of respect and satisfaction beyond anything else. लोग उसके बारे में कैसा बोलें, क्यों बोलें, छोटा है, बड़ा है, टीवी का है, फिल्म का है, एक्स है, वाई है, जी है, मुझे उनकी बहुत इज्जत है। शाहरुख सर, यहाँ पे ये अभी अवार्ड का सब सीजन, जैसे आपने कहा कि शाहरुख सर, आप कहाँ पे हैं मुझे बोलें प्लीज। The man, yeah, gentleman there. Can you please say your name and नाम publication? बोलना यार। चंद्रकांत शिंदे, दिव्य मराठी से। चंद्रकांत शिंदे, दिव्य मराठी। चंद्रकांत। हाँ। अभी अवार्ड, जैसे आपने कहा कि अवार्ड का सीजन शुरू हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर हम लोग देखें तो अवार्ड की जो गरिमा है या उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कम हो गई है। मतलब जो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा लगता है यार कि जो परफॉर्म करते हैं, अमूमन जो परफॉर्म करते हैं वो होते हैं जिनका साल अच्छा बीता होता है। जिनका साल अच्छा नहीं बीता होता उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया नहीं जाता। साल अच्छा बीता होता है तो ऑफकोर्स उनको ये अवार्ड मिलेगा क्योंकि अच्छी फिल्में की होंगी। एक लॉजिक है इसके अंदर, लेकिन कई लोग जो हैं इसको थोड़ा सा सिनिकल अंदाज से देखते हैं। एक डिस्कशन ये है कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आप सही हैं, बहुत सारे हैं मुझे लगता है, लेकिन 2, 4 या 3 अवार्ड ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं, और आई थिंक उनकी जो गरिमा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, जिस तरह से वो किए जाते हैं, जिस लेवल पे किए जाते हैं, वो एंटरटेनिंग तो होते ही हैं। तो चंद्रकांत के सामने खड़ा हो गया दोस्त। हाँ, तो उसकी जो उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है उसमें एक फीलिंग है कि जो भी कलाकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक इज्जत दी जाती है। ये डिस्कशन जिंदगी भर चलता रहेगा कि अवार्ड की गरिमा कितनी है, कितनी नहीं है, बट आई थिंक दे आर इनफ इन दिस कंट्री which are very, very respected, of course this being the foremost amongst them, and you need to, you know, play it along. जैसे अभी टेलीविजन चैनल कितने हो गए हैं,
जर्नलिज्म इतना बढ़ गया है, राइटर्स इतने सारे आ गए हैं, which does not take away from the importance of writers or journalists or television channels. I think there are very many, but you need to choose and say, okay, these are the 3 most important ones, and if you get one of those, you should take it with a little more seriousness. But the others are there for fun, entertainment, and goodness, and you have to accept it because we are in that kind of industry and that kind of stage of entertainment right now. शाहरुख सर प्लीज पूछ लूं, आपने कहा शाहरुख सर कि ये मैं मंदार जोशी दैनिक भास्कर ग्रुप से, आपने अभी कहा कि बहुत सारे अवार्ड का सीजन ये चालू है, तो शाहरुख सर के आपके ऊपर जिम्मेदारी यार, आप यूएसपी हो जी सिने अवार्ड्स के, बहुत सारे अवार्ड्स है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार भी उसको होस्ट करने वाले, फिल्म फेयर वगैरह जो अवार्ड्स है, तो इंटरटेनमेंट वैल्यू जी सिने अवार्ड्स की सब आपके ऊपर है, तो क्या लगता है कि ये सब अवार्ड फंक्शन के एक अलग अवार्ड फंक्शन आपके माध्यम से, आपके परफॉर्मेंस के माध्यम से सब व्यूअर्स को देखने को मिलेगा? मेरे सारे कॉलीग्स हैं यार जो बाकी अवार्ड फंक्शंस में परफॉर्म करेंगे, होस्ट करेंगे, और सबके सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा और बड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अपार्ट फ्रॉम द बायस कि मेरे दोस्त हैं जी वाले, ये जो प्लेटफॉर्म है, हम दुनिया भर में हम लोग जाकर ये अवार्ड कर चुके हैं, कई बार मैंने परफॉर्म किया है, कई बार होस्ट किया है, कई बार जस्ट ऐसे ही पार्टिसिपेट किया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बट जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, एक तरह से जो कलाकार करना चाहता है उसको एक फ्रीडम मिलती है एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोडक्शन के अंदर, टेलीविजन के माध्यम से, और जितने लोग देखते हैं, जैसा अभी बताया गया 52 मिलियन पीपल सॉ इट लास्ट ईयर द अवार्ड फंक्शन, तो आर्टिस्ट को यही बात अच्छी लगती है कि लोग जो हैं उसके काम को बहुत सारे लोग देखें। सो मुझ पे दारोमदार नहीं है, एज अ प्रोफेशनल एक्टर मैं पूरी मेहनत करूंगा, और मैं ही नहीं, जितने एक्टर एक्ट्रेसेस बाकी अवार्ड फंक्शन भी होस्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी उतनी मेहनत करेंगे, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह बहुत बड़ा है। सो मैं खुशकिस्मत हूँ, और जितने भी एक्टर्स, अभिषेक जी हैं और माधुरी जी हैं और बाकी जिनके नाम अभी आएंगे सामने, वो सब खुशकिस्मत हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। एक कलाकार को उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न, एंड हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे आप लोगों को जी सिने के माध्यम से, और कोशिश ही कर सकते हैं, एंड होपफुली इट विल टर्न आउट वेल फॉर एवरीवन। हाय शाहरुख, हाय हाय The lady. हाय शाहरुख, Yeah. हाय The lady on the right. Yeah. Hi. Yeah. Excuse me. The lady who's standing. You can say your name. Hi Shahrukh. Yeah. This is Somdatta from Blockbuster. Somdatta. Happy New Year to you first. Thank This you, is the Somdatta. first time we are Same to wishing you. you. Next time we'll wish you during Diwali. Okay. My question to you is that your definition for awards has always been very simple as a winner. But क्योंकि Zee Cine Awards Viewers Choice Awards है, तो अगर शाहरुख खान एक व्यूअर हैं और होते तो ऑफ कोर्स, तो क्या उनके क्या पैरामीटर्स होते किसी को वोट करने के लिए फॉर अवार्ड्स? I think they would fit into the category that even Zee must have had. इनके एक बड़ा अपना पैरामीटर है कि किस तरह से व्यूअर्स के अवार्ड्स आते हैं, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, एक तो वो फिल्म होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आई हो, चाहे आर्टिस्टिकली पसंद आई हो या कमर्शियली पॉपुलरली पसंद आई हो। उसके मैं थोड़ा सा फिनिकी हूँ एक्टिंग के बारे में, तो अगर मुझको कभी जूरी पे बिठा दिया गया तो मैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाऊंगा, बट आई थिंक यस, आई वुड कंसिडर, फर्स्ट थिंग आई वुड कंसिडर इज दैट मेल एंड फीमेल परफॉर्मेंसेज आर कंसिडर्ड एट अ सिमिलर लेवल। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेस्ट एक्टर अगर हो तो लड़की को भी मिल सकता है, एक्टर इज एन एक्टर वेदर इट्स अ जेंटलमैन और अ लेडी, एंड सो आई माइट मेक अ व्यूअर्स चॉइस अवार्ड लाइक दैट। डिस्टिंक्शंस अब करने लग गए हैं, कॉमेडिक रोल के लिए अलग होता है, विलनस रोल के लिए अलग होता है, सो आई थिंक द पॉपुलैरिटी प्लस द आर्टिस्टिक पार्ट ऑफ इट, उसका मिक्स मैं जरूर देखूंगा जो जी में है, और कई बार उसमें डिमार्केशन भी कर लेते हैं कि हम एक क्रिटिक अवार्ड भी रखते हैं और एक आर्टिस्टिक और पॉपुलर अवार्ड भी रखते हैं, सो बट आई वुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट परफॉर्मेंसेस। शाहरुख यहाँ पे, शाहरुख जनक, आप एक एक करके यार, मैं नहीं करूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। शाहरुख, आप लोग The lady here to the right has a mic. मेरे पास इसके बाद कोई भी काम नहीं है, पुनीत और मैं बैठ के सिर्फ बातचीत करने वाले हैं इसके बाद, तो मैं यहीं Last 3 questions आराम when से Shahrukh says that. ओके शी इज बिजी सो शी हैज टू गो। Shahrukh, hi Shahrukh, Shikha here from Bollywood Nazar. Shahrukh here. I'll do all the questions, darling. I'll do all the questions. Please ask. The lady. Hi Shahrukh.
दिस इज शिखा फ्रॉम बॉलीवुड नजर. आपके फैंस और भारत की काफी जनता चाहती हैं कि आप और आपके दोस्त सलमान खान एक साथ एक टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे. क्या जी सिने अवार्ड्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप दोनों एक साथ दिखाई देंगे? कितना पुराना क्वेश्चन हो गया यार ये. कोई नई बात करो यार. शाहरुख जनक. नेक्स्ट क्वेश्चन. शाहरुख जनक फ्रॉम फुलछाप डेली राजकोट से. शाहरुख, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शाहरुख की लाइब्रेरी में अभी इतने कितने अवार्ड्स है, और जब कभी भी कोई नया अवार्ड घर में आता है तो सबसे पहले आपके जो चाइल्ड्स है उनका रिएक्शन क्या होता है? किसका? मेरे बच्चों का? हाँ. एक तो तुम मुझे शाहरुख कह रहे हो, नाम बदल दिया तुमने मेरा यार. मैं अमूमन जो अवार्ड मिलता है अपने बच्चों के जो बेड के किनारे टेबल है उस पे जाके रख देता हूं कि सुबह जब स्कूल जा रहे हो तो उसको देख लें. और मैंने एक मुझे पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे अभी तक शायद 172 अवार्ड मिल चुके हैं. मुझे मालूम नहीं ये सच है कि नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ जो पढ़ता हूँ उसको मानता नहीं हूँ, बट ऐसा कहा गया है. बट अभी भी मैं जो अवार्ड मिलता है वो जाके अपनी बेटी के सिरहाने रखता हूँ या अपने बेटे के सिरहाने रखता हूँ. ऐसा ऑल्टरनेट करता रहता हूँ. जब दो मिलते हैं तो दोनों के सिरहाने रख देता हूँ. जैसा मैंने कहा, अब तीसरा वाला हो गया है तो ज़्यादा जीतने पड़ेंगे. बट बहुत खुश होते हैं वो. और अगले दिन सुबह या जब स्कूल से आते हैं तो 2-4 मिनट मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि अवार्ड जिस चीज़ के लिए मिला है वो मेहनत की वजह से मिला है, सो दैट दे कैन लर्न दैट पार्ट ऑफ इट, नॉट द स्टारडम, द ग्लैमर, ऑल द ट्रैपिंग्स दैट सराउंड अ स्टार. आई थिंक इस बात को जाने की यार मैं मेहनत करता हूँ और उसकी वजह से कभी कुछ ठीक ठाक हो जाता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत की वजह से. और अगर ऐसा करते रहोगे तो कोई ना कोई उसको रिकग्नाइज करेगा और तुमको सराहेगा. Shahrukh Anirban here from Shahrukh, Hindustan hi. Times. Here. Shahrukh Anirban here Shahrukh, hi. from... This is the lady. Shahrukh, to your right. This is Akanksha from UTV. Darling, Shahrukh, I didn't get your that- name. I didn't get your Akanksha. name. Akanksha. Hi, Shahrukh. Considering that Priyanka has always considered you as an inspiration, and right now she'll be hosting Filmfare. Do you think she was the best replacement of you? Because we see you, and your fans definitely see you on Filmfare every year. Like we somehow associate those awards with you. So, do you think that, considering Priyanka being such a hard worker and all, do you think she was the best replacement for that show hosting? It's a little unfair for me to kind of compare and comment on colleagues working. To say. Yeah, especially at Zee Cine Awards, it's wrong. So thank you for your question. I'm really sorry. It's a little wrong to be answering this, comparing. Shahrukh Anirban here from Hindustan Times. मतलब आप लोग लड़कों से compare के थक गए, अब लड़कियों से भी करने लग गए यार. Shahrukh, many actors have time and again expressed their negative opinion. साफ बोल यार तू पहले. Anirban here from Hindustan Times. हाँ. Many actors have time and again expressed their opinion on award functions and have called them rigged. Do you agree with the opinion or have a different opinion on award functions? Say it again. I'm saying that many actors have time and again have called award functions as being rigged. Do you agree or have a different... As rigged. So what is your opinion? Do you agree or have a different opinion on that? Yeah, if I won 172 awards, I'm not going to say they're rigged. It will be very stupid of me to say that. एक नॉर्मल सी बात होती है, जब आदमी जीतता है तो लगता है उसका हक है, जब आदमी नहीं जीतता है तो उसको बुरा लगता है कि शायद यार इसके अंदर कुछ कमी रह गई, मापदंड में कमी रह गई, थोड़ा सा जूरी या वोटिंग एक्स वाई. सी यू हैव टू फाइंड अ रीजन always in your life when you haven't got it right. And opinions, like you said, on social networking sites and people, that's an opinion. And that will always remain. For years it has remained. But जब आप किसी चीज़ में काम करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, you go and think कि यार जो मैंने किया है ये मेरे मेहनत का फल है और उसकी वजह से मिला है. As long as you are honest in your heart and work hard and receive something for your hard work, you have to accept it with graciousness, gratefulness and thankfulness. Anybody who has a different opinion, they are very welcome to it. But I think from my point of view, it's a little cynical. I don't think like this. Like I said jokingly, I have received too many awards to look down upon them. Like I said, I have an immense amount of respect for them. And I will always respect them. That is why I attend all the award functions, whether I'm getting an award or not. Either I perform at them, host them. I have always tried to do that with as much sporting spirit that I have, because I have been chosen enough times to be awarded some. If somebody doesn't believe it is right,
It's their belief, I can't question it, but I think it's a little cynical. Shahrukh, hi. Ilika here from Zoom. I just want to know, you've always said that you are an entertainer and you are always open to performing anywhere if someone calls you graciously and, of course, at a price. Lately, Bollywood has come under scanner because many of them performed in the Safai UP Mahotsav. And they've been paid for that. And because there's also another national issue which has been going on in UP because of Muzaffar riots. So as an actor, if you would have been paid to perform in such a state where it's already under scanner, personally, would you do it? And do you think it's right for Bollywood celebrities to go out and... I think two things. One, again, darling, I'll just say two things about this. One, I will not take a moral high ground and comment on the reasons for my colleagues working or taking on a job. I think, again, it's extremely unfair. We don't know the details of why they have done it, how they have done it, should they have done it or not. I can't take a moral high ground. I'm a performer myself. There have been times when I've gone and done a performance because I'm a performer and acted on stage, not realizing sometimes, not being aware sometimes, that there are other issues surrounding the area that I'm working in. It could be a reason like this. It could be a reason that, better judgment could have prevailed, may not have prevailed. But having said that, I will never take a moral high ground and mention on the choice of work my colleagues do. What they have done is completely their choice, right, wrong, from which point of view media is seeing it. I've been seeing it myself, we were watching it. I don't think I can really comment on it. I hope it wasn't to be so and become controversial. Having said that, I do think Bollywood sometimes is picked upon unfairly and commented upon out of turn just because one can. But having said that, I won't take a moral high ground and say, would I have done it, wouldn't I have done it? I'm not part of it. I don't think I should be talking about it. One last question. Hi. Hello, both of you. Wish you a very happy new year. Roshni here from AFAX. My question is for Mr. Goenka. Mr. Goenka, Z has a lot of awards. You have a lot of awards in-house. Z Cine, Rishte, Mindspace. You have leadership awards. And recently you have tied up with another on-ground event, JLF, that is Jaipur Literature Festival, which is more focused to the literature crowd. But Z is a mass brand, we all know that. So why, first of all, why that? And how different it is to have an in-house on-ground event and an event like JLF, which is not in-house, but it is as big as any other event in the country. First and foremost, Z is the only homegrown Indian entertainment group in this country. बाकी सारे मेरे दोस्त, काबिल दोस्त सब विदेशी हैं. तो हमें लगता है कि हमें तो हमारा IPR ओन करना चाहिए. इसलिए हमने सारे अवार्ड्स खुद के ही इनकलकेट किए हैं. बाहर के अवार्ड्स भी हम टाई अप करते हैं जो हमें मिलते हैं, लाइक द जी गोल्ड अवार्ड्स. वो हमारा अवार्ड नहीं है, वो हम बाहर के अवार्ड के साथ टाई अप करते हैं. आपका दूसरा रीज़न, जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ हमने क्यों टाई अप किया? एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम कहानियाँ बताना है और जी लिटरेचर फेस्ट इज नथिंग बट टेलिंग स्टोरीज, बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग लिटरेचर. वो किताबों में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम टेलीविजन पे उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो इट्स अ ऑटोमेटिक फिट फॉर अस टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग लाइक दैट. तो इसलिए हमने उसके साथ एसोसिएट किया है. और ये एसोसिएशन लंबा एसोसिएशन है, 3 साल का एसोसिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड आई थिंक वील गो अ लॉन्ग वे थ्रू दैट एज वेल. All right, I'd like to say something. It's a really nice question, young lady, that you've asked. I think, literature, written material is somehow getting a little ignored because of this wonderful, invention called television, and especially channels like Z, which have taken over the world. 700 million people watching it. I think it's extremely important for platforms, modern platforms like this, कि इतने जो नए तरह के प्लेटफॉर्म आए हैं जो हमारे बच्चे देखते हैं, घर के लोग देखते हैं, और आपने जैसा कहा कि हम नॉर्मली इसको मास ऑडियंस से रिलेट करते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फेमिलियल ऑडियंस है, फैमिली ऑडियंस के साथ हम रिलेट करना चाहिए जी जैसे चैनल को. तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लिटरेचर के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर ऐसी चीज़ें जिसको हम कभी कभी अब इग्नोर करते हैं या जो इग्नोर होने लग गई हैं क्योंकि उनके पास ऐसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म नहीं है. Someone like Z takes it over and other TV channels also. I think it's an amazingly commendable thing. और मुझको भी कहा था पुनीत, मैं वहाँ में आ नहीं सकता शूटिंग की वजह से, but inshallah whenever I get a chance, I think literature is extremely important, and if they can make literature
Masi in today's time by bringing it on this platform. I think it will be a great boon for the children of this country and elsewhere. Thank you, Shahrukh. Thank you. Thank you, Shahrukh. Thank you, Puneet sir. Can we request you all to come up? देखो झगड़ा जो 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्योंकि तुम लोग लेट आए हो आज. खान साहब आखिरी इसलिए- सवाल. Okay, one more खान question. साहब कई बार बॉलीवुड में कहा One गया more है, question to the gentleman standing. 3 कर लेते हैं उषा. बॉलीवुड में कई बार ऐसा देखा गया है जो कई सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं. फिर से बोल ध्यान से. बॉलीवुड में कई सारे सुपरस्टार्स हैं जिनको अवार्ड इतने सारे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी वो सुपरस्टार्स की गिनती में आते हैं. तो क्या लगता है अवार्ड्स की क्या अहमियत है? मतलब अवार्ड्स मिलने से क्या स्टारडम पे कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर फिल्मों के ग्राफ में कुछ इफेक्ट पड़ता है आपको लगता है अवार्ड्स पाने से? एक्चुअली यार थोड़ा सा अनएजुकेटेड है. अगर हम एक चीज को ही अगर स्टारडम को हम उसकी परिभाषा दे सकें, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकें, तो बहुत सारे लोग स्टार बन जाते हैं. मैं सच बताऊं, किसी को मालूम नहीं कि क्यों आदमी या औरत स्टार बन जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर. तो अवार्ड जो है उनके स्टार बनने को सेलिब्रेट करते हैं. उस स्टार बनने में क्या मेहनत लगती है, ऑडियंस उसे क्या पसंद करती है, चॉइस ऑफ वर्क क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार. सो आई डोंट थिंक वन थिंग कैन रैटिफाई या जस्टिफाई कि आप इस वजह से स्टार हैं क्योंकि आपको अवार्ड मिल गया. आई थिंक स्टारडम इज एन इनटैंजिबल थिंग. उसको पकड़ा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता. तो इसलिए उसको किसी एक माध्यम में कैद करके रखना रॉन्ग है. आई थिंक स्टारडम जो है बहुत फ्री फ्लोइंग है यार. मिले अवार्ड नहीं मिले, लोग हर चीज को पसंद करते हैं. किसी की पसंद पे कोई पाबंदी नहीं है. आई डोंट थिंक इट डिमार्केट्स कि आप सबसे बड़े स्टार हैं क्योंकि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं. सिवाय मेरे केस में वो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन मेरे जैसे केस 1 in a billion होते हैं, वो हर रोज नहीं होते. ये जोक है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ प्लीज. हाँ, चैनल आना मत कि मैं शो ऑफ कर रहा था. ऐसे ही मजाक से बोल दिया मैंने. मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दी. मैंने सोचा है कि अब मैं जोक नहीं करूंगा, इसलिए होस्टिंग भी कम कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा एक छोटा सा जोक कर दिया था. बट जेन्युइनली स्पीकिंग आई थिंक देयर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स बिसाइड्स अवार्ड मेक अ स्टार. शाहरुख, हेलो. Can you 3 सवाल है यार, सोच समझ के बोलना अभी. नहीं या शाहरुख. Your mic is, sir, your mic. आपके पास माइक है, आप बोल डालो यार. Okay, when do we see you? We will seeing you in this show through television, but when do you see you as in television, in a serial and any soap? Do you see you? You have मैं हर रोज बोलता हूँ पुनीत को, अभी भी ऊपर बोल रहा था यार. कुछ एक सीरियल में ले लो, कोई टेलीविजन शो कर दो. मतलब आजकल तो स्टारडम की परिभाषा अवार्ड्स और बॉक्स ऑफिस नहीं है, किसके पास कितना बड़ा टीवी शो है उससे भी है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ कर लो. We have seen an international show of Anil Kapoor being very successful. Yeah, fantastic यार. So you plan to do something like this or any other show? उसी का शो करूंगा तो गलत हो जाएगा. Any other show? हाँ, no, I've told Puneet and the Z family that कोई ऐसी चीज मिले मैं भी वक्त निकालूं और अच्छा, क्योंकि आई थिंक टीवी की जो ऑडियंस है और जो टीवी के दर्शक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े. मैंने खुद शुरुआत टीवी से की है, मुझे बहुत इज्जत है. इसकी वजह से नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत वहां से की. टेलीविजन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी एक्टर एंड एक्ट्रेस. आई वुड लव टू डू पार्टिसिपेट इन इट व्हेनेवर आई एम गिवन अ चांस. With your permission, Shahrukh, just to tell all of you that we are working to see if we can bring him on television again very soon. Yeah. Let's hope we can do that soon. वो मेरी तुम्हारी वजह से मेरी एक जॉब तो फिक्स हो गई आज. Thank you. That's awesome. I'll come and hug you. Let all these boring questions get over, then the hugging with the girls start, okay? Okay, one last question, please. वो माइक्रोफोन वाला गेम का, वो माइक्रोफोन गायब हो गया सब. छीन लिए उन्होंने, छीन लिए सारे. Excuse me. Have I? Do I go over them? Excuse me. नहीं, कमरा है मेरे पास पूरा यार. एक कमरा है अभी तक तो फिलहाल, लेकिन अच्छा काम करता रहूंगा तो कमरे भी बढ़ा दूंगा. इसलिए मैंने हमेशा कहता हूं, बड़ा घर लिया ही इसलिए है मैंने कि अवार्ड रखने की जगह मिले. लेकिन नो, आई हैवंट गॉन थ्रू माय अवार्ड्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने अपनी फिल्में भी इतनी नहीं देखी जो मैं कर चुका हूं. वो मैंने बाद के प्लान में रखा हुआ है. जब अकेला कहीं सुनसान बैठा हूंगा, कोई पहचानेगा नहीं, तुम लोग इंटरव्यू नहीं करोगे, तब बैठ के ये सब करूंगा, अवार्ड गिनूंगा और फिल्में देखूंगा. राइट नाउ आई एम नॉट काउंटेड. मैंने बताया ना, किसी ने ट्विटर पे लिखा था 172 या कुछ है.
आपने उसको बोला छोड़ो, Sir, माइक ही नहीं दे रहे हैं। can you please ask your question? Yeah, that last question, please. Okay. डार्लिंग, इन दोनों के बीच में जो बात है मैं उसका जवाब क्यों दूं? Thank you, ma'am. मैं अपने काम से बहुत खुश हूं और मुझसे वो सवाल पूछें जिससे मेरा कुछ लेना देना हो, जो जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझसे Can मत the पूछें। photographers please But be? thank you very much everyone once again. Thank you, Shahrukh. Can the photographers please come in front for a photo op? Can I request Shahrukh and Puneet sir? Okay, thank you everyone. Thank you for being so kind. God bless you all.